Welcome back, children. Let us move ahead today with a new topic of chapter 4 of SS. Now, the topic is related to the various reforms that were brought by Molle Minto. So, the name given to this reform was Molle Minto reform. Reform मतलब कि कुछ नयापन ले आना, existing चीज़ में ही उसे बेहतर बनाना, like the reforms of Dalhousie. Similarly, over here, Molle Minto reform. Now, always it doesn't mean कि हर बार reform कुछ अच्छे के लिए ही हो, but majority of the time reformation is done for a betterment. So the English adopted the policy of divide and rule to create enmity between Hindus and Muslims. That was in 1906, we already saw. And under the leadership of Aga Khan, Muslim delegation, that is this Muslim group, Muslim party, they met Viceroy Minto. Morley was the Indian Wazir we already had seen at that time in 1909. These reforms that they created came to be known as Molle Minto reform. Now, arrival of Gandhiji to India. Now here comes a great change in the life of the Indians with the entry of Gandhiji in 1915. Gandhiji returned to India in 1915 after successfully fighting against racism, that is color bar, black and white, in South Africa through Satyagraha. His political guru, or we call it mentor, was Gopal Krishna Gokhale. तो पॉलिटिक्स में उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन स्पिरिचुअल गुरु थे उनके श्रीमद राजचंद्र, who always used to inspire him. Gandhiji traveled across India and observed the life of Indians. तो पहले तो उन्होंने आके इंडिया को पूरा नज़दीकी से देखा, ट्रैवल किया, लोगों की लाइफस्टाइल देखी, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं वो देखी, क्यों वो इतनी पॉवर्टी में है उसका रीज़न देखा उन्होंने. ही कंसिडर्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस इंडियंस बाय द ब्रिटिशर्स एज द मेन रीज़न ऑफ पॉवर्टी, that is as a root of poverty in India. And from then onwards Gandhiji made plans to abolish British rule from our country. So, Rowlatt Act, your short note, and yes, a short movie you are going to see on it, not movie but a short video. Now Rowlatt Act 1919, British government formed this act, Rowlatt Act, under the chairmanship of Rowlatt, Minister of Law, in 1919. This act was framed with the purpose of suppressing revolutionaries and nationalists. अब जो लोग रिवोल्ट करते थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो नेशनलिस्टिक फीलिंग वाले लोग थे, who were ready to give away their life and take the life of Britishers, right? जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी रीड कर लिया था, तो उनके एक्ट को सप्रेस करना, उनको स्टॉप करना, to bring them under control, this act was framed. And this act came to be known as Black Act by Gandhiji because ये एक्ट ही कुछ ऐसा था कि सारी जो हमारी फ्रीडम थी, इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमसे छीन ली गई थी. सो दिस एक्ट केम टू बी नोन एज ब्लैक एक्ट बिकॉज इट वॉज मेंट टू सप्रेस इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. According to this act, any suspicious person could be arrested and jailed without conducting any trial against him. अब ये एक्ट कुछ इस तरह से था कि अगर ब्रिटिशर को किसी भी इंडियन पे शक जाए, सिर्फ डाउट होना चाहिए, डाउट आया किसी पे मतलब उसको पकड़ के डाल दिया जेल में, ना कोई रीज़न देना फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर, ना वो आदमी कोर्ट में जा सकता है अपनी अपील करने, कुछ नहीं. इट वॉज टोटली टर्म्ड एज अ ब्लैक एक्ट, वेरी क्रूअल एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिशर्स. सो दैट्स वाई गांधीजी कॉल इट ब्लैक एक्ट. और मोतीलाल नेहरू ने इसे कंसिडर किया एज स्नैचिंग अवे ऑफ, स्नैचिंग अवे मतलब जबरदस्ती से किसी की राइट छीन लेना. सो इट वॉज स्नैचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील, एडवोकेसी. मतलब मोतीलाल नेहरू के हिसाब से उन्होंने कहा कि इस एक्ट में
हम इंडियंस आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते थे कि भाई क्यों हमें आप जेल में डाल रहे हो, तो नो आर्ग्यूमेंट, नो क्वेश्चनिंग, नो अपील, रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, एडवोकेसी, कोर्ट तक हम अपने आप को नहीं ले जा सकते अपील करने की भाई हमारा केस फाइल करो, रीजन तो बताओ हमने क्या किया है, राइट, नथिंग. So this right was taken away, snatched away from us by the Britishers. The British government gained great power under this act. मतलब ठीक है, पकड़ पकड़ के सबको जेल में डालो, राइट, तो ये तो बहुत बड़ा पावर उनके हाथ में आ गया अंडर दिस एक्ट टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ अपोजिशन. और अब तो कोई भी अपोज करता तो उसको डाल दिया जेल में. सो लीडर्स एंड पीपल एट लार्ज एक्सप्रेस their opposition, अपने इमोशन जाहिर किए, अपोज किया. मीटिंग्स, रैलीज, मतलब जो सरगस ले जाते हैं ना रास्ते पे, प्रोसेशन, रैलीज कहते हैं, शोज, रास्ते पे शोज किए, स्ट्राइक्स, सब जगह पे, फैक्ट्रीज में जाना बंद कर दिया लोगों ने, स्ट्राइक पे आ गए. दिस वर ऑर्गेनाइज ऑल ओवर द कंट्री. गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली, लेकिन लोग हारे नहीं. उन्होंने गांधी जी के जेल में होने के बावजूद भी उनका कहा हुआ फॉलो किया. When Dr. Satyapal and Dr. Kishlu were arrested in Punjab, the agitation became severe. Agitation मतलब revolt. The government strongly, that is vehemently, tried to stop and control very cruelly all this opposition of Indians. Very short video also on this also I'll be showing you. Now Jallianwala Bagh massacre, of course very important for your 4 marker, 13 March 1919, for objective also equally important. And all those who must have visited this place, you must have seen it's a beautiful garden, and now of course taken care of, greenery everywhere. और एक जो रास्ता वहां तक पहुंचने का है वो आज भी उतना ही नैरो है. एंड यस, आई वुड से इन फ्यूचर व्हेन एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल इन द वर्ल्ड एंड वी विल बी मूविंग अराउंड इन द वर्ल्ड, तो सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट गो एंड सी ब्यूटीफुल इंडियन हेरिटेज. और दूसरी कंट्री में जाने से पहले आई वुड सजेस्ट कि पहले इंडिया पूरी तरह से देख लो. देयर आर ब्यूटीफुल प्लेसेस टू गो अराउंड. Then you can move on to other countries. But just like students what they do, कि यहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट करने के पहले ही कहीं और चले जाते हैं दूसरी कंट्री में, जैसे इंडिया में तो कुछ है ही नहीं. दिस इज वॉट वी आर डूइंग. तो आई वुड से जलियांवाला बाग मतलब गार्डन, ऑसम प्लेस, ब्यूटिफुल, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस इन आवर हिस्ट्री, इट्स अ ग्रेट हिस्टोरिकल place also. I would wish that you go and see it in future, very soon, of course. When popular leaders like Dr. Satyapal and Dr. Kishlu were arrested in Amritsar, Punjab, a public gathering, मतलब एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई. It was organized in Jallianwala Bagh in Amritsar on the day of Baisakhi. उनका बहुत बड़ा ये फेस्टिवल होता है. To oppose the arrest. अब बड़े 2 लीडर्स को, पंजाब के लीडर्स को अरेस्ट किया गया, तो उसके अपोजिशन में लोगों ने एक मीटिंग रखी जलियांवाला बाग में. जनरल ओडोनिल डायो रीच देयर विथ हिज ट्रूप्स. अब ओडोनिल डायर पहुंच गए वहां पे अपनी ट्रूप के साथ, अपनी आर्मी के साथ. विदाउट एनी वार्निंग ही स्टार्टेड फायरिंग ऑन द इनोसेंट पीपल फ्रॉम द मशीन गन, राइट. देयर वर हाई वॉल्स ऑन 4 साइड ऑफ द बाग. ऐसा ही कुछ हुआ था अमेरिका ने जब जापान को डिस्ट्रॉय किया, 2 डेवलप्ड सिटीज को, हिरोशिमा एंड नागासाकी. तो ये एक वॉर का एक रूल है दैट बिफोर यू थ्रो द बॉम्ब, एरियल अटैक हो, बिफोर एरियल अटैक या बिफोर यू अटैक इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, ये जलियांवाला बाग वाला मैसेकर, तो you have to give warning to the people that we give you 2 hours or 4 hours or 1 hour time period, vacant the city or vacant that
एरिया, दैट रीजन। अब यहाँ पे इन्होंने वार्निंग नहीं दी थी, तो ये एक बहुत बड़ी गलत चीज उन्होंने की, बहुत बड़ी गलती थी इनकी। सेम लाइक अमेरिका, वन ओवर ईयर। देयर वर हाई वॉल्स ऑन फोर्थ साइड ऑफ द बाग। इन द मिडिल देयर वाज अनयूज्ड वेल। अनयूज्ड मतलब फिर तो नेचुरली जिसको बहुत टाइम से यूज ना किया गया हो, पानी भी नहीं है उसमें, ड्राई वेल ऑफ कोर्स। देयर वाज अनयूज्ड वेल एंड द ओनली वे आउट वाज वेरी नैरो। तो जो एंट्री थी वही एग्जिट थी। नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड इन दिस फायरिंग। तो एंट्री वही, एग्जिट वही। अब एंट्री तो ले ली बहुत लोगों ने, एग्जिट के टाइम पे वहां पे ऑर्डोनल डायर खड़े थे अपने ट्रूप के साथ, मशीन गन के साथ, तो लोग बाहर की ओर भी नहीं आ सकते थे, नैरो थी एकदम आउटलेट या इनलेट। अच्छा, वॉल थी चारों ओर, तो लोग अगर उस और घर थे तो रोप डाल के खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक उन पे गोलियां चल चुकी थी। लोगों को लगा, क्योंकि तब दिमाग काम नहीं करता, तो कई लोगों को लगा चलो वेल में जाके छिप जाते हैं, लेकिन एम्प्टी वेल था, ड्राई वेल, गिरते ही मरे। तो इट वॉज वेरी सैड एक्ट, आई वुड से, एंड वेरी क्रूअल एक्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट, ब्रिटिशर के हिसाब से सिर्फ 379 मरे और 1200 इंजर्ड। बट जब कमिटी, इंडियन कमिटी मेंबर्स ने, कांग्रेस पार्टी ने जब एक कमिटी बिठाई और उन्होंने जब सर्वे किया, रिसर्च किया, तो 1000 पीपल हैड डाइड इन द फायरिंग। अब हंटर कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन्होंने प्रोटेक्ट किया जनरल डायर को नेचुरली। अब कोई भी माँ अगर उसका बच्चा किसी को जाके थप्पड़ मार के आए और सामने वाले माँ कंप्लेन करने आए, तो नेचुरली जो मार के आया है उसकी मम्मी अपने बेटे को तो प्रोटेक्ट ही करेगी कि ना, मेरे बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, किसी और के बच्चे ने किया होगा, ग्रुप में लड़ाई होगी, 4-5 बच्चे लड़ रहे हैं, वहाँ पे मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, बहुत सारे प्रूफ हैं देखने वालों के, फिर भी मम्मी 100% अपने बच्चे की गलती को छिपाएगी, प्रोटेक्ट करेगी। सेम ओवर हियर, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी कंट्री के जनरल डायर को तो वो प्रोटेक्ट ही करेगी। उसने तो भेज दिया था हंटर कमीशन इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन हंटर कमीशन भी उन्हीं का था, ब्रिटिशर का, तो उन्होंने अपने आदमी को प्रोटेक्ट किया। कमीशन फॉरगिव डायर कि चलो भाई भूल से भूल हुई, इट वॉज अ मिस्टेक डन बाय मिस्टेक। आर यू गेटिंग इट? व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? भूल से भूल हुई, ये तो हजम ही नहीं होगा किसी को। सो दिस हंटर कमीशन फॉरगिव डायर saying that it was innocent mistake that happened by mistake, unknowingly, जानबूझ के कुछ नहीं किया, मतलब कि जानबूझ के उसने, बिना जानबूझ के उसने हजारों लोगों को मार दिया और वहां पे खड़ा भी रह गया था एंट्री पे, इतने सारे मशीन गन और आर्मी को लेके, ट्रूप को लेके, अनबिलीवेबल। ऑन द अदर हैंड, व्हेन डायर रिटर्न टू इंग्लैंड, जस्ट इमेजिन, बच्चे की गलती पे मम्मी प्रोटेक्ट तो कर ही रही है, घर में गोदी में उठा के उसको लड्डू पेड़े भी खिला रही है और उसको प्यार भी कर रही है कि बच्चा तूने कुछ नहीं किया, डोंट वरी, यू एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, दिस इज व्हाट हंटर कमीशन ने किया डायर के साथ और इंग्लैंड ने किया डायर के साथ। एक तो माफ कर दिया, उसकी भूल छिपाई, और ऊपर से जब इंग्लैंड गया तो उसको रिस्पेक्ट मिला विथ अ स्वॉर्ड, गोल्डन स्वॉर्ड एंड 2000 पाउंड। अब यहाँ पे गोल्डन स्वॉर्ड तो नहीं था, लेकिन ऐसे मान ले कि इतना रिस्पेक्ट दिया उसे। एंड 2000 पाउंड एट दैट टाइम इन 1919, मतलब कि इतने मोर देन, आई वुड से इट वॉज 100 years बैक। तो 2000 पाउंड, 1 पाउंड आज इक्वल टू अप्रॉक्स वी कैन से 100 रुपीज। तो ये तो तब के 2000, मतलब कि कितनी बड़ी वैल्यू थी उसकी, क्योंकि इंडियन करेंसी वॉज ऑफ हाई वैल्यू। सो इफ यू कंसिडर दैट वे, आज अगर 1 लाख हो रहे हैं तो तब करोड़ हो रहे थे, इतने पैसे कैश मिले उसको गिफ्ट में। इंडियंस गॉट अ टेरिबल शॉक ड्यू टू दिस।
आफ्टर दिस क्रूअल एक्ट, इनह्यूमन एक्ट, गांधी जी का जो विश्वास था, एक थोड़ा बहुत भी जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, वो खो चुका. दिस इवेंट प्लेड अ ग्रेट रोल इन यूनाइटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स. द होल कंट्री केम टुगेदर. This tragedy became the ground or the reason for the future non-cooperation movement. तो फ्यूचर के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए रीजन बना ये, राइट, जलियांवाला बाग मैसेकर. मैसेकर मैंने बताया था, एक या दो का मरना नहीं, एक साथ बहुत 100 का मरना, 100, 200, 300, 1000 का मरना एट वन पर्टिकुलर टाइम ड्यू टू सेम रीजन कि किसी को मार डालना, राइट, इज कॉल्ड मैसेकर, राइट. तो फिर एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब क्या? ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करना एज पर गांधी जी. दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड. कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, बट विथ फुल सिविलिटी, मतलब civil non-cooperation movement. Clear? Now, Khilafat movement. So now the next topic is Khilafat movement. Now, during the First World War, Turkey joined the German side. That we already know, we have done. So when England won, the treaty that was made had many strong and unjust terms and condition for the losing side. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ने ज्वाइन किया था जर्मनी को, और जब इंग्लैंड जीती तो एक ट्रीटी बनी थी जिसमें बहुत ही पार्शलिटी वाले टर्म्स एंड कंडीशन थे फॉर द लूजिंग साइड. मतलब कि काफ़ी कुछ विनर को मिल रहा था, लूजर को सम वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने थे. सुल्तान ऑफ टर्की एट दैट टाइम वॉज खलीफा, this head of Muslim. Movement in India to oppose the strict terms imposed on Turkey and Sultan came to be known as Khilafat movement. अब टर्की के सुल्तान वो थे खलीफा, जो मुस्लिम के रिलीजियस हेड भी थे, और इंडिया में जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी टू अपोज द स्ट्रिक्ट टर्म्स इम्पोज ऑन टर्की एंड सुल्तान केम टू बी नोन एज खिलाफत मूवमेंट. So which particular movement in India came to be known as Khilafat movement? Strict terms and conditions that the Turkey had to follow and Sultan had to follow. That strict terms के against या अपोज करने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी known as Khilafat. Ali brothers Maulana Shaukat Ali and Maulana Muhammad Ali were the main leaders of this movement. Gandhiji requested the Congress to support this movement, keeping Hindu and Muslim unity in India. अब यहाँ पे कुछ डिटेल में नहीं दिया है, but it so happened that the Khalifa was imprisoned. तो अब उनको छुड़ाने के लिए एक मूवमेंट हुई थी, तो टर्की के जो मुस्लिम थे उनको सपोर्ट किया इंडियन मुस्लिम्स ने. नेचुरली when Muslim will support the other Muslims in the other country, क्योंकि ये religious head थे खलीफा, तो they needed the support of the Muslims. तो यहाँ पे कांग्रेस लीडर ने भी कहा कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे. Many people went against this thought of गांधी जी कि we are supposed not to support the Muslim in this खिलाफत movement, but we supported. एक ही गोल था और एक सोच थी गांधी जी की कि शायद अब अगर हम मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं और उनके खलीफा को हम फ्रीडम दिलवाते हैं तो हमारी मूवमेंट सक्सेसफुल जाएगी और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी हो जाएगी. लेकिन हुआ नहीं है. मूवमेंट को सक्सेस तो मिला, लेकिन इस मूवमेंट के बाद फिर से हिंदू मुस्लिम अलग हो गए. तो ये एक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, ये धर्म के नाम पे ही सिर्फ दो कम्युनिटी साथ आई थी. गांधी जी की सोच शायद अलग हो, लेकिन यूनिटी नहीं हो पाई. द मूवमेंट बिकेम सिवियर विद द कांग्रेस सपोर्ट, बट लेटर ऑन रिजल्ट भी अच्छा आया.
ये मूवमेंट को सक्सेस भी मिली, बट जो गांधी जी की जो सोच थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाली, वहां पे सक्सेस दिखाई नहीं दिया. देन केम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एज आई टोल्ड यू. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब मैंने तुम्हें कहा अभी कि नॉट टू कॉपरेट विद ब्रिटिशर्स. उनके कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को गांधी जी ने कह दिया इंडियंस को कि हम फॉलो नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करना है एंड ऑल दोस थिंग, बट विथ फुल सिविलिटी. तो एक गुड एग्जाम्पल चलो तुरंत तुम्हारे दिमाग में उतर जाएगा. विथ फुल सिविलिटी मतलब विथ मैनर्स एंड डिसिप्लिन, डोंट फॉलो रूल्स ऑफ ब्रिटिशर्स, नो रिवोल्ट, राइट. तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे नेचुरली मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का, इस तरह से. और कई बच्चों को तो पता भी चल गया मैं क्या बोलने वाली हूँ, बिकॉज अप टिल नाउ यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड माई एग्जाम्पल्स दैट आई कीप ऑन गिविंग अबाउट यू एंड मी. एंड तो लेट्स स्टार्ट विथ, बहुत ही ईजी है कि व्हेन वी इन्फॉर्म यू कि चलो अब नेक्स्ट वेडनेसडे, चलो अभी जो वेडनेसडे गया उसी का एग्जाम्पल लेते हैं. चलो इतना नज़दीक भी नहीं जाते हैं, थोड़ा और जाते हैं पास्ट में. दैट वुड प्रोवाइड अ बेटर एग्जाम्पल, आई थिंक सो. तो प्रीवियस एसएस की एग्जाम, मतलब अभी जो तुम लोगों ने इंग्लिश UT5 दी, तो UT4 की एसएस जिसको ऑलरेडी काफ़ी दिन हो गए, फिर भी रूल्स की ऐसी तैसी, रूल बहुत सिविलिटी से डिसओबे कर रहे हैं. दो नॉट ऑल, दो फ्यू, लेकिन वो फ्यू भी क्यों, राइट, वो थोड़े बहुत भी क्यों रूल्स ब्रेक कर रहे हैं. एंड दे हैव मेनी रीजंस. यहां पे जो गांधी जी लेके आए थे वो एक पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. तुम जो कर रहे हो बहुत ही प्यार से, इज्जत से, रिस्पेक्ट से रूल्स ब्रेक कर रहे हो. कि वेडनेसडे की एग्जाम ठीक है, फ्राइडे तक बच्चे 10 दिन के बाद शायद दिखते हैं मुझे कहीं पे उनके पेपर्स, राइट. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. once again, not all, many of my children are very much in discipline, they are giving it on time. But वो जो 3-4 जो बच जाते हैं, I am talking to them and they know I am talking about whom. So बहुत ही उतनी ही सिविलिटी से देना शुरू कर दो एग्जाम. बैकलॉग इतना हो जाएगा कि उस पाइल को क्रॉस नहीं कर पाओगे. And by the time exam school की हो जाएगी and you will be laughing at your result that wow, such a nice result I have got, you know. So non-cooperation movement, नागपुर में एक मीटिंग हुई थी which gave the approval, मतलब this meeting agreed to non-cooperation movement in December. अब हुआ ये that Congress made a strong demand for स्वराज्य, मतलब खुद का राज्य. दे डिमांडेड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ स्वशासन. हमें खुद को राज करना है खुद से, नहीं कि एक थोड़े छोटे एरिया में ही फ्रीडम मिले. वी डिडंट वांट दैट. सो वी डिडंट वांट स्वशासन, दैट इज राजा का राज अंडर ब्रिटिश एम्पायर, अंडर ब्रिटिश रूल. वी वांटेड no other country to rule us. We wanted Indian to rule India. तो अब देखो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फीचर्स. एक था पॉजिटिव फीचर, मतलब उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव. अब इस पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट में क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू बी मेड स्ट्रॉन्ग. सेकेंड, गिव मोर इंसिस्टेंस, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑन यूजिंग स्वदेशी प्रोडक्ट, मतलब घर के बने मतलब घर के अंदर बनाए गए नहीं, इंडिया के बने ही प्रोडक्ट हम यूज करेंगे. रिवाइवल, फिर से ले आओ चरखा जो हम भूल चुके थे. रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील इन एवरी हाउस, ये हर घर में ऑफ कोर्स. कलेक्शन ऑफ 1 crore रुपीज फॉर तिलक स्वराज्य फंड,
क्योंकि उसी पैसे से हमें हमारी मूवमेंट आगे बढ़ानी थी, लड़ाई लड़नी थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, हथियार से नहीं, नॉन वायलेंटली, लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए थे। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नेशनल एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन, प्रोहिबिशन, फिर नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिखना है प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, मतलब दारूबंदी, दारू छुड़वाना एटसेट्रा। ये सारे थे पॉजिटिव एस्पेक्ट। ये इन सारों में कोई ऐसी चीज नहीं थी जहां पे तुम कहोगे नो। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे एक भी एक्ट ऐसा नहीं है जहां पे तुम ये कहोगे नहीं, हम स्वदेशी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, हम स्पिनिंग व्हील को यूज नहीं करेंगे, हम 1 करोड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, हम अनटचेबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे। यू नो, नो वर्ड का यूज नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको हमने कहा है कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव एस्पेक्ट और फीचर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट मतलब हर एक काम में ना कहना, लेकिन कुछ अच्छे के लिए। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि पढ़ाई नहीं करो, तुम कहोगे नो मैम हम पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई करेंगे बोलना इज कंस्ट्रक्टिव। लेकिन मैं जो कहती हूँ कि पढ़ाई मत करो, इसके लिए ना कहना इज ऑल्सो गुड, लेकिन वर्ड यूज हुआ नो, मतलब नेगेटिव फीचर। तो अब नेगेटिव एस्पेक्ट कंसिस्टेड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, ब्रिटिश के यहाँ जॉब, नो। उनकी स्कूल, इंग्लिश स्कूल एंड इंग्लिश कॉलेज एजुकेशन से नो। फिर पार्लियामेंट में जाके बैठना तो से नो, मतलब बॉयकॉट कर दो। गवर्नमेंट कोर्ट में जाके, मतलब उनके इंडियन लॉयर्स, इंडियन जजेस इन ब्रिटिश गवर्नमेंट कोर्ट, नो, रिजाइन कर दो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हमारी खुद की गवर्नमेंट हमें बनानी है, उनकी गवर्नमेंट को एबॉलिश करो, बॉयकॉट करो। बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, से नो टू फॉरेन गुड्स, से नो टू फॉरेन क्लॉथ, say no to foreign functions and titles given by them etc. One negative aspect. अब कौन से एक्ट किए गए, क्या काम हुए, क्या प्रोग्राम्स कैरी आउट हुए in this non-cooperation movement? In the beginning of this movement, महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर सरेंडर देयर टाइटल। अब टाइटल मतलब कि बहुत एक बड़ा ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लाइक लोकमान्य तिलक, लेकिन लोकमान्य तो हमने दिया था बाल गंगाधर तिलक को, तो वो उन्होंने रखा। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का रिस्पेक्ट किसने दिया? ब्रिटिशर ने, उन्होंने रिटर्न कर दिया टाइटल। महात्मा गांधी को केसर हिंद किसने दिया? ब्रिटिशर ने, उन्होंने रिटर्न कर दिया टाइटल। तो दिस वॉज द मूवमेंट का बिगनिंग में ये हुआ, स्टार्टेड विद ग्रेट लीडर्स। Other leaders of the nation also gave up the title and position. Students ने इंग्लिश स्कूल और कॉलेज छोड़ दी ब्रिटिशर की। At various places foreign clothes were set on fire. When Duke of Connaught came to India, मतलब कि वहाँ का जो रूलर जब यहाँ पे आया, right? He was boycotted. In 1921 November, सेरेमनी ऑफ ऑनरिंग प्रिंस ऑफ वेल्स वॉज बॉयकॉटेड। प्रिंस ऑफ वेल्स भी आए तो उनको हमने रिस्पेक्ट नहीं दी, वी बॉयकॉटेड हिम। सच इंसिडेंट्स क्रिएटेड ग्रेट नेशनल एक्साइटमेंट। लोगों में उनको एक बढ़ावा मिला इन इंसिडेंट्स को देख के, दैट वी ऑल्सो शुड कम आउट ऑफ आवर हाउस एंड फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम, फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, बॉयकॉट फॉरेन प्रोडक्ट एंड स्कूल एंड कॉलेजेस। ऑन दी अदर हैंड हमने स्टार्ट की नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज जहाँ पे संस्कृत, हिंदी, गुजराती पढ़ाया जाता था। एंड वी ऑल्सो एस्टैब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेज एट काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात एट्सेट्रा, विद्यापीठ मतलब स्कूल। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट, प्रचार, प्रोपेगेंडा फॉर स्वदेशी गुड्स, ब्रिटिश के यहाँ से इंपोर्ट ऑफ क्लॉथ कम हो गया, उनका लॉस हुआ बहुत बड़ा। फुटवेयर का इंपोर्ट, लग्जरियस प्रोडक्ट फ्रॉम इंग्लैंड, इन सब का इंपोर्ट रिड्यूस ग्रेटली। दिस रिएक्शन रैटल द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरा एक जैसे
कहते हैं थप्पड़ की गूंज काफी साल तक उनको सुनाई दी, वैसे ही इस रिएक्शन की गूंज उनको सुनाई दी ब्रिटिश पार्लियामेंट तक। मतलब असर बहुत बड़ी थी उन पे इसकी, उनका लॉस, इकोनॉमिकल लॉस हुआ बहुत बड़ा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मीटिंग हुई, गवर्नमेंट वॉज शॉक्ड बाय दिस काइंड ऑफ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू इंग्लैंड। More than 1 crore rupees was collected in Tilak Fund. On many occasions, Hindu-Muslim came together unitedly. They emerged predominantly. मोपला रिवोल्ट बिटवीन हिंदूज, मतलब एक फाइट हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, मलबार रिवोल्ट भी कहते हैं, बिटवीन हिंदूज, हिंदू लैंडलॉर्ड, जमींदार एंड मुस्लिम फार्मर्स। अब ये एक इवेंट गलत हुआ था, बाकी सब हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाले थे। So this Mopla revolt deserved criticism and it was stopped by British Army. Government adopted policy of suppression, uncontrolled lathi charge, firing, collective arrest, inhuman, that is cruelly torturing them, was carried out, that is meted out. This our Indian had to face with all this thing. They meted out with these things, cruel act of Britishers. Unsuccessful attempt to break Hindu-Muslim unity was made. अब हिंदू मुस्लिम की यूनिटी तोड़ने की कोशिश की गई, बट एट मेनी प्लेसेस ब्रिटिशर्स वर नॉट सक्सेसफुल, इट वाज अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। चौरा चौरी इंसिडेंट एंड विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट। अब यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया, स्टॉप कर दिया गया। बिगेस्ट रीजन, गांधी जी ने कहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट विथ फुल सिविलिटी, नो वायलेंस। चौरी चौरा इंसिडेंट में वायलेंस ऐड हुआ। गांधी जी वॉज सैड। उन्होंने कहा आई थिंक सो माई पीपल हैव नॉट येट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस, और मैंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक क्रिएट कर दी आपके हाथ में ये मूवमेंट दे के। सो आई एम सॉरी, आई स्टॉप दिस मूवमेंट इमीडिएटली। सो पीपल टुक आउट अ प्रोसेशन, अ रैली इन चौरी चौरा विलेज इन गोरखपुर, यूपी. Police opened fire on the people, but when they ran short of bullets, अब ब्रिटिशर के पास बुलेट्स कम पड़ गई चौरी चौरा गांव में, दे रैन शॉर्ट ऑफ बुलेट्स, तो चौरी चौरा गांव के लोगों ने अटैक किया पुलिस स्टेशन में, और 21 पुलिसमैन थे पुलिस स्टेशन में जो छिप के बैठ गए थे, तो उस पुलिस स्टेशन को इंडियंस ने आग लगा दी एंड दे डाइड. ऑन रिसीविंग दिस हॉरिबल न्यूज, गांधी जी सेड, आई हैव कमिटेड अ ह्यूज, दैट इज हिमालयन मिस्टेक, दैट इज ब्लंडर, by giving this tool of satyagraha, that is non-violence, in the hands of my people who don't understand the meaning of non-violence. So he stopped this movement immediately. So we stop over here. We too as such stop over here. Continue in the next lecture. And yes, you will see a short video after this. So thank you very much. Take care. Thank you. Jallianwala Bagh tragedy. A large but peaceful crowd gathered at the Jallianwala Bagh in Amritsar on April 13, 1919 to protest against the arrest of leaders like Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal. Jallianwala Bagh had only one exit. Its other three sides were enclosed by buildings. General Dyer, the military commander of Amritsar, surrounded the Bagh, that is the garden, with his soldiers. After closing the exit with his troops, he ordered them to shoot at the crowd. The troops kept on firing till their ammunition was exhausted. About 1,000 innocent demonstrators were killed and many more wounded. The conscience of the nation was shaken at the massacre of innocent people. After the massacre, the British government made a half-hearted attempt at constitutional reform. But it also made it clear that it had no intention of parting with political power or sharing it with Indians. The British government also refused to annul the Rowlatt Act and make amends for the atrocities in Punjab. The Khilafat and Non-Cooperation Movement. In this module, you learn about the Khilafat
and non-cooperation movement that was organized by Indian nationalists against the British. The Khilafat and non-cooperation movement was closely connected with the anti-colonial struggle of the Indians against the British, especially during the First World War and the post-war years. During these years, Indian people faced a lot of hardships, such as shortage of food, increase in taxes, and forceful recruitment to the army. People all over India fought against such problems, but in isolation, till Mahatma Gandhi appeared and suggested a new mode of struggle. In 1915, Mahatma Gandhi returned to India from South Africa and introduced a new method of mass agitation called Satyagraha, based on the principles of truth and non-violence. He organized unified peasant movements in Bihar and Gujarat against the British, which were very successful. Encouraged by the success of these movements, Gandhiji launched a nationwide Satyagraha against the Rowlatt Act of 1919, which proposed to detain Indian political prisoners without trial. The movement ended in the Jallianwala Bagh incident in Amritsar, in which hundreds of innocent people were killed by General Dyer. As the news of this tragedy spread throughout the country, civil violence began in all parts of India, because of which Gandhiji was forced to call off the Rowlatt Satyagraha. Around the same time, Indian Muslims were angered by the way the British had treated the defeated Emperor Khalifa of Ottoman Turkey after the First World War. In response to this, Muslim leaders Muhammad Ali and Shaukat Ali proposed to launch the Khilafat movement. Gandhiji seized this opportunity to bring Indian Muslims and Hindus together to start a unified national struggle against the British. This resulted in the launch of the Khilafat and non-cooperation movement in December 1920. The main agenda of the movement was total non-cooperation with the British government, which included surrender of official titles, boycott of government schools, army, police, etc., and use of foreign goods. However, different sections of the Indian society interpreted the movement in different ways. In the towns, the middle class responded to the movement with a lot of enthusiasm by resigning from government schools, colleges and courts. In addition, they peacefully picketed shops selling foreign cloth and liquor. In the countryside, the movement took the shape of a struggle against the oppressive landlords and talukdars, demanding a reduction of land revenue and abolition of forced labour or begar. To organize these movements, the Awadh Kisan Sabha was set up by Jawaharlal Nehru and Baba Ramchandra in October 1920. Workers employed in British plantations also left their work to return to their villages. However, they were captured and beaten up by the British. Although the movement managed to unite various sections of society to fight against the British rule, the movement started dying out because the Congress was unable to provide alternative institutions, and people were forced to return to their government jobs and services. In addition, Congress workers could not remain non-violent throughout, and there were clashes between the protesters and the British authorities. At Chauri Chaura in Gorakhpur, Uttar Pradesh, a mob of protesters set a police station on fire, killing a number of policemen. Due to this violence, Gandhiji called off the movement in February 1922. Let's recall what you've learned. Indians had to face many hardships during the First World War and in the post-war years, such as shortage of food, increase in taxes, and forceful recruitment into the army.
In 1915, Mahatma Gandhi introduced the idea of Satyagraha to organize mass movements against the British. The Rowlatt Satyagraha movement was organized in 1919, which resulted in the Jallianwala Bagh incident, causing the death of hundreds of people. In 1920, the Khilafat and non-cooperation movement was launched to protest against the unfair treatment of Ottoman Turkey by the British. The main aim of the movement was total non-cooperation with the British government and boycott of British goods. The movement was called off by Gandhiji in February 1922 after the Chauri Chaura incident. In this module, you will learn about the Rowlatt Act and the Jallianwala Bagh massacre. The success of Satyagraha movements in Champaran, Kheda and Ahmedabad gave a boost to the morale of the oppressed Indians. Threatened by the growth of Satyagraha, the British decided to exert more control over public activities. As a result, they proposed the Rowlatt Act in 1919, named after its chairman, Sir Sidney Rowlatt. The Rowlatt Act was aimed to curb the political activities in the country. It equipped the courts with the power to detain political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi opposed the Rowlatt Act by starting a peaceful satyagraha. He suggested a civil disobedience beginning with a hartal on 6th April 1919. It was followed by rallies, strikes by railway workers, and closing down of shops. To sum it up, the day-to-day work across the country was brought to a grinding halt. The British were threatened that this mass movement could break all lines of communications in the country, and so they decided to suppress the nationalists. As a result, several local leaders were arrested and Mahatma Gandhi was prohibited from entering Delhi. In Amritsar, police opened fire on a peaceful procession. Angered by this brutal action, people attacked banks, post offices, and railway stations. Consequently, martial law was imposed in Amritsar under the command of General Dyer. The event that took place on 13th April 1919 is always remembered for the most heinous aggression of the British. Unaware of the martial law, several villagers had gathered at the Jallianwala Bagh in Amritsar to attend a cattle fair on the occasion of Baisakhi. To crush the multitudes of people and create terror, General Dyer came to the ground with 50 armed soldiers. He blocked all the entry points to the ground and without any prior warning, opened fire on the hapless crowd. The firing stopped only when the ammunition ended, leaving hundreds of people, including women and children, dead and wounded. The Jallianwala Bagh massacre triggered many protests, strikes, and clashes with policemen and attacks on government buildings across North India. The British government dealt with these protests with an iron hand. They humiliated the satyagrahis by ordering them to rub their noses on the ground and forcing them to salute the British officials. Finally, bombing of villages made Mahatma Gandhi withdraw the satyagraha against the Rowlatt Act. The satyagraha against the Rowlatt Act was successful, but it did not reach masses in the rural areas. Mahatma Gandhi wanted a mass movement that would involve people from all religious communities across the country. This paved the way for the non-cooperation movement, which was conceptualized by Gandhiji to bring all Indians together
to work for a single national movement. You have now reached the end of the module on Rowlatt Act and Jallianwala Bagh Massacre. In this module, you learnt that the Rowlatt Act aimed to curb the political activities in the country, and it equipped the courts with the power to detain political prisoners without trial for 2 years. In opposition to the Rowlatt Act, Mahatma Gandhi initiated a civil disobedience movement. Several people were killed in Jallianwala Bagh massacre in Amritsar. This incident had happened under the command of General Dyer.